infective disorder of respiratory pathogen. Usually it comes with the close contact from the patient who comes with another man, whether he is having close contact or come in association with him, followed by it gradually spreads from one to another, which is called as Sankramak Roga, and it spreads to the entire mankind. It never thinks a boy or a girl, a adult or a young, because as it is a viral disorder, it can affect starting from the birth till to the death. Hence, everybody requires something to counteract all these things. We must know, as it is a respiratory system disorder, first it starts with mild malaise or feeling of restlessness, or we can call it as weakness, followed by fever. Whenever fever is associated with sneezing or rhinitis or anything else, from the beginning we must be careful, or it comes to our doubt that I may be suffering from COVID-19. Hence, it is the first and foremost to inform your local doctor, or the government has provided 104 or the health assistants are there, those who are coming to take the nasal swab or from your swab from your mouth to see that whether you are COVID-19 positive or negative. Then and there, they differentiated between isolation and keep you quarantined so that it should not transmit to other people, even your family. And mostly, then and there, whatever persons, whatever your family members whom are there, they should be separated from you. You may be provided with a home isolation, or if your condition is little bit going to worse, then they ship to you the government accommodated COVID centers. How can it be known? It can be known if you are feeling restlessness, your respiration is not proper, or the oxygen saturation is becoming less by less or coming down and down, so that you will be given immediate treatment. Then how it is affected and to whom it is affected? Mostly those who are having above 60 years, or we call it them as they are older age group peoples, they are more suffering from, or they are more going to suffer from more problems. Hence, they are more prone to the disorder rather than the younger persons. Hence, we do the tests and see whether the positivity is there or not. And due to advancement of the science, now we are even having MRI scannings or CT scannings where we see how many patches are in their lungs, so that we can group the patients in different disorders. Those there is decrease of the oxygen saturations, they are giving oxygen supplementations, and even if it is becoming harder or the person could not able to take the oxygens, so we are providing ventilators so that the patient can be cured by that. The exact medication regarding the COVID is not available. So till today, we are giving separate types of drugs. Few drugs are antiviral, few drugs are antipyretic, few drugs are there for better respirations. Still today, no specific drug is commonly available for the common persons. So different drugs are being tried on different types of people. Even in different states also, even the doctors also always try different type of regime to different types of patients. Even
when the plasma therapy was given, people were thinking it is the one of the best. But later it was found that it was no way helpful. Then they give remdesivir, flavipir, so the things are there. But till today, there is no successful treatment regime which is prescribed by the Medical Council of India or anywhere else. So naturally a question here comes, if there is no specific medicine for this specific disease, why we are not trying which is available in Ayurveda? So hence it comes, does Ayurveda having COVID-19? No. Ayurveda never describes any disease like COVID-19. So how can we prescribe the drugs? We have to see from the old text where it is written having the same symptoms in our different disorders. Even prior to this, Ayurveda has described the Janapada Dhvansa, where it is written that if the climate is vitiated, if the earth, if the water, if the air is vitiated, different types of disorders will affect the whole mankind, where thousands or lakhs of people will be dying without proper treatment or without improper treatment. According to that, we came to know that this is the positions where we can save the patients by starting from the air purification till to the entire respiratory system purification. What does it mean? Our respiration starts from the nostril to the last alveoli of the lungs. Whenever this virus comes, it has to locate one position where it can grow. Either it is in the nostrils or in the respiratory tract or even goes to the lungs where it creates patches leading to hardness or thickness of the lungs so that a person cannot take proper respiration. It is observed from the postmortem that the lungs, which is near about 500 gram only and porous, or it is having elasticity so that the respiration could be proper. After death, it is found that the lungs become hard or rock-like so that the person could not able to take the respiration. So hence, naturally the question comes, how, in which way we can prevent the disease, we can treat the disease in view of the entire description available in the text or the descriptions given by the scientists from all over the world. We are finding these COVID-19 bacteria start from the nostrils with the close contact with the persons, and followed by it goes through the nostrils to the lungs. So for that reason, to prevent these things, we are practicing isolation, we are practicing sanitization, we are practicing masks. This is a common principle or which can be taken as Chikitsa Sutra or the principles of treatment. Ayurveda has already given Nidanam Parivarjanam. That means which are the causative factor, we have to remain beyond these things. In that case, we have to isolate ourselves, we have to limit our outside activities, and mostly remain in such a place where it is difficult for the COVID-19 virus to attack us. Second comes from the nostrils. If it goes through the nostrils, then Ayurveda has given few oils like Arutala, Sarvindutala, which can be taken in the morning and evening so that the virus cannot travel to its nostril roots. Then comes, what are the drugs if a person is affected by COVID? We have already discussed what the person is having. The person is having fever. The person is having respiratory difficulty leading to thickening of the lungs.
So what could be done in that cases? We have to see what are the tablets or what are the medicines are written in the Ayurvedic books to subside the fever. Thousands of medicines are written in the Ayurvedic text, which are Jwarahara or which can subside the fever. Next comes, what are the drugs which can mildly bronchodilate the drugs or make the drugs to be having alveolar, having the capacity or more elasticity so that the respiration should be proper. With Ayurveda, if we practice the yogic therapy also, like pranayam or kapalabhati, so that the respiratory tract or the respiratory system will be proper to throw away the viruses, and the lungs will having its elasticity, so that we have to depend less on the ventilators or we have to depend less for the oxygen inhalations. In those cases, along with the Ayurvedic medicines, we can practice yoga. Then comes the most effective or the most effective drugs which are widely used throughout India and which are people are taking it widely. It has come to knowledge that the body immunity, whenever there is any antigen or any foreign protein comes inside the body reacts in antibody phase or creates certain things to counteract. It can only happen if your immunity power is strong. So that is the immunity booster is the drug of choice at present to counter the COVID-19 cases. For that reason, Ayurveda having wide range of drugs. Guduchi, Ashwagandha, these are the major drugs which we are providing in our body for different types of disorders. Though Ashwagandha is an immunomodulator, it is having immunity booster, it is having anti-stress activity also. It is a good drug for the common people those who are suffering or those who are remaining can prevent the disease. Another thing is was observed that whenever the people are remaining in a positive state or it is a good frame of mind, usually the death rate decreases or the COVID-19 not becoming fatal. Ashwagandha is the drug of choice which reduces the stress also. So in one way, it can provide your immunity. Secondly, it can provide your stress also. In that case also, you will be beneficial from Ashwagandha if we can provide it or we can take it prior to the disease. Likewise, we can give the Guduchi also, which is presently available as a tablet or even as a churna or even sattva. It is widely available in any Ayurvedic store. People are using these Arogya Kasaya, what we are calling it MP, or in different names in different states. But the major ingredients should be told to the people as the common drugs are available within their reach or even in their kitchen also. Another thing is haldi, which is widely used by the common people for alleviation of the body malaise, even from infections also. Though these drugs are widely used priorly, in between people are using for getting benefits from common diseases. Now this is the time we can show to the masses that these Ayurvedic drugs are not only curative but also having preventive therapy. Whoever takes it without caste or creed or without the age groups, depending upon the doses of the medicines.
the Ayurvedic doctors are there to see how much drugs should be taken by whom, and according to the Prakriti, what should be given. It is not randomly used. This is the technical things which the doctors can prescribe or the doctors should prescribe. Hence, any patient or anybody who wants for prevention or curative or any other things, he should consult with the Ayurvedic doctors to take what. From the government point of view, what the Honorable Minister Sahib and the Secretary Sahib has told, it is really a good thing that these drugs should be given as a gift or it should be available in the hospitals as a common drink so that people will be benefited by them. Whatever happens, whenever the demand comes, then the ayush come to the picture. But it is a real fact. Whenever we are in the field or we are being consulted, always the ayush people are taken as a second grade or when any other branch fails. It should not be there. You can see all over the world now research is going on vaccines. We know vaccine is good to prevent the disease. When we are talking of the prevention aspect and we are talking about the immunity boosters are called as rasayans since thousands of years before in the Ayurvedic field. Why don't we practice it? Why don't the government has taken steps to provide these things to the common masses? Even in this present stage, when thoroughly patients are there, no proper research is going on the Ayush drugs. My humble request to the Honorable Minister Sahib, to Honorable Secretary Sahib, to make a program to see, to have a good research profile or good research proforma so that we can assess these drugs, how much it is becoming effective. Even Bhalataka is another drug which is widely used as a good rasayan drug which helps or counteracts the toxic substances of the body. So many drugs are there in Ayurveda described. Every Ayurvedic people knows it. They are ready to use it, but the lack of facilities, the lack of research modules, the lack of scientific approach has tied their hands to prove its own science, which not only be helpful for the present generation in India, but always it is that it will be helpful to the world masses and even today and even further this. I am thankful to all of you for giving me this time and listen whatever knowledge I am having, and I wish all of you should grow high and take this Ayurveda light further. Thank you. Namaste, sir. Namaste. Thank you. Thank you very much, sir, Thank for your very wonderful talk on the topic. And thank you very much for enlightening the scope of Ayurveda for the treatment and management of COVID-19. Thank you very much for sharing your valuable knowledge for our students and all the members of fraternity of Ayurveda. Thank you very much, sir. Thank you. Now it is time for our second scientific session. For this session, we have guest speaker Dr. R.K. Joshi, Professor, PG Department, Kai Chikitsa, NIA, Jaipur. He is going to deliver his lecture on Ayurveda for COVID-19 pandemic. We welcome you, sir. So to give a brief introduction about our second guest speaker, Dr. R.K. Joshi, I request Dr. Akhilesh Bhargav, Associate Professor and HOD, Department of Shalya Tantra, to please
give a brief introduction about our second speaker, Dr. R.K. Joshi. Dr. Bhargav ji. Dr. Akhilesh Bhargav ji, please give a brief introduction about our second guest speaker. Thank you, sir. I am. Yeah, you are audible. Okay, continue. भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस विशेष प्रयोजन के वेबिनार आज की आवश्यकता कोरोना आयुर्वेद के प्रभाव एवं संभावनाओं को लेकर जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि श्री रामकिशोर जी कावरे, आयुष विभाग माननीय मंत्री जी एवं आदरणीय श्री प्रतीक हजेली जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एवं कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय प्रोफेसर सतीश चंद्र शर्मा जी, जिनके द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है और जिनके नेतृत्व में हम सभी लगातार इस कोविड महामारी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामकिशोर जी जोशी जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का परिचय देते हुए मैं हर्षित हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का छात्र रहा हूँ और उन्हीं के चरणों में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के काई चिकित्सा विभाग के एचओडी के पद पर कार्यरत हैं। आपने इसी संस्था से देश के ख्यातनाम संस्थान जयपुर से बीएमएस, एमडी, पीएचडी करके यहीं से अपने कार्य क्षेत्र की शुरुआत की। आपने वर्ष 1991 में एनआईए जयपुर में फिजिशियन के तौर पर अपनी सेवाएं देना शुरू की। आपने अपने समर्पित व्यक्तित्व, आयुर्वेद की सेवा, प्रशासनिक क्षमता एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए एनआईए जयपुर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर आज काई चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष का सफर तय किया है। और मैंने स्वयं ने आदरणीय सर के समर्पण को, आयुर्वेद के प्रति समर्पण को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार उन्होंने एक लगातार इतने वर्षों तक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद को रखते हुए आयुर्वेद की और अस्पताल की और वहाँ के मरीजों की सेवा की है। आप एनआईए जयपुर में अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद भी लगातार सफलतापूर्वक वहन कर रहे हैं। आपको आयुर्वेद के क्षेत्र में पीजी डिपार्टमेंट में लगभग 28 साल का लंबा टीचिंग अनुभव रहा है। आपके निरीक्षण में अभी तक 37 एमडी स्कॉलर एवं 14 पीएचडी स्कॉलर अपना शोध कार्य पूर्ण कर चुके हैं और शोध कार्य पूर्ण करने वालों में भारत के ही नहीं अपितु भारत के बाहर के छात्र भी लगातार आपके संपर्क में हैं। शिक्षण के अतिरिक्त आयुर्वेद में रिसर्च के क्षेत्र में भी आपका अतुलनीय योगदान रहा है। आपके नेशनल, इंटरनेशनल, पीयर रिव्यूड जर्नल में 42 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आपके द्वारा रचित काई चिकित्सा की पुस्तकों के द्वारा पूरे भारतवर्ष के शिक्षक एवं छात्र लगातार लाभ ले रहे हैं। आपने विभिन्न नेशनल, इंटरनेशनल सेमिनार में अपने व्याख्यान भी दिए गए हैं, जिनकी संख्या 80 से अधिक है। आपने 2015, 2014, 2017 में एनआईए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के डायरेक्टर के पद को भी सुशोभित किया है। आप अनेक क्लिनिकल रिसर्च कमेटी के चीफ इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु WHO की फेलोशिप के माध्यम से आप थाईलैंड आदि देशों में गए हैं और भारत की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसको विदेशों तक पहुंचाया है। आज आयुर्वेद साइंस के इस धनी व्यक्तित्व का अपने द्वारा परिचय देते हुए मैं उनको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस अवसर पर भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूँ कि कोविड-19 के विषय पर जो आयुर्वेद का एक विषय है, जो इस कोविड-19 की प्राइमरी कंडीशन में एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक कंडीशन में काम कर रहा है और हम लगातार इस महामारी के विरोध भी कार्य कर रहे हैं। इस वेबिनार में आज निश्चित रूप से आम जन कुछ ऐसा निष्कर्ष जरूर निकलेगा जिसको आम जनता को लाभ होगा, रोगियों को लाभ होगा। भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूँ इसकी सफलता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। Thank you, Dr. Bhargav ji. So now I request Dr. R.K. Joshi sir to please continue your talk on the topic. Dr. R.K. Joshi sir, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। डॉक्टर जोशी सर। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ सर, आ रही सर। ओके। परम सम्माननीय ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर सर श्री रामकिशोर कावरे जी, माननीय मुख्य सचिव आयुष प्रतीक जी, प्रिंसिपल सर सतीश चंद्र शर्मा जी,
डॉक्टर सुरेश चंद जी, एक्सपर्ट सर, SK दास अधिकारी जी, अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी, सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट, छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रिंसिपल साहब का और सभी संस्थान के जो यहाँ से अध्ययन करके गए, वहाँ सुशोभित हैं, अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं, उन सब का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं सभी निश्चित रूप से, अभी दास साहब ने कहा था कि कोविड के बारे में, निश्चित रूप से इस व्याधि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद में कहीं भी लिखा दिया है वहां के असंख्या विद्यमाना नाम, व्याधि असंख्य है, नाम लक्षण गुणादि भी प्रवृत्ति थी। इसके द्वारा इसको एक तरह से जानना चाहिए। हमारा जो आयुर्वेद का जो फंडामेंटल है, आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, यदि हम उन सिद्धांतों को एक तरह से अपना करके और यदि हम चिकित्सा करें, क्योंकि आप ये सब विद्वानों को पता है कि कोविड का कहीं भी एक तरह से संस्कृत चरक संहिता, बागभट्ट, कहीं भी इसका नाम नहीं है। हम लक्षणों के आधार पे ही चिकित्सा करते हैं। कहीं व्याधियां हैं, कहीं चिकित्सात्मक रूप हैं जिनका एक तरह से नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को लेकर के चिकित्सा करते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि मुझे जो टॉपिक दिया था वो डायबिटीज था, कि कोविड में यदि डायबिटीज की स्थिति है तो हम उसको किस तरह से केयर कर सकें। तो मेरा थोड़ा सा इस पे व्याख्यान है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी विद्वान हैं, डायबिटीज, प्रमेह के बारे में आप सब जानते हैं। गिरिया से शेर वाला यहाँ, शेर कहाँ से हुआ? अखिलेश जी, शेर कहाँ से होगा इसमें? शेर का शेर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तिवारी मैं जी, स्लाइड आशीष तिवारी जी, आप थोड़ा सार को गाइड करा दीजिए। नाउ प्लीज चेक। आ गया सर, अब अवेलेबल हो जाएगा सर। ओके सर, ओके। ओके, एक मिनट इसको, वो आएगा ना ये। सर, इज देयर एनी डिफिकल्टी शेयरिंग? सर, मेरी स्लाइड आ रही है आपको? सर, अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाई है। सर, मेरी स्लाइड दिख रही है अभिषेक, अखिलेश जी? नहीं सर, अभी नजर नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना। नाउ इट इज विजिबल सर। सर, आगे आपका स्लाइड आ गए हैं? हाँ सर। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको प्रमेह या मधुमेह के बारे में बताना चाह रहा हूं। ओके,
हाँ, आ रही है अखिलेश जी? जी सर। ओके, तो मैं आपको कोविड के, यदि निश्चित रूप से कोविड जिसको है या इस तरह की मधुमेह व्याधि यदि किसी को है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कोविड, या हम ये कह सकते हैं कि प्रमेह प्रमेह व्याधि के बारे में आप सब विद्वान हैं और आपको इस बात का पता है कि किसी भी ज्ञान को देने के लिए प्रमेह के बारे में आपको देखा कि जब हम चरक को देखते हैं उठा करके, तो वहां पर सबसे पहले इसके लिए लिखा है कि किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए आचार्यों ने कहा है कि यह व्याधि, ये व्याधि निर्मोहम अनुसया, चरक बताते हैं कि निर्मोह अनुसया निराशय पुनर्वशो तपो बले छे। यानी कि आचार्य अग्निवेश ने जब इस प्रकार के प्रमेह के बारे में पूछा तो उन्होंने यही बताया कि यह व्याधि मोह से युक्त है। इसीलिए आचार्य अग्नि पुनर्वसु को सबसे पहले विशेषण बताया उन्होंने कि ये निर्मोह युक्त होकर के हमको बताइएगा। तो कितना एक तरह से इसमें बताया है कि निर्मोह अनुसयातु। आपने देखा होगा कि जहां भी आचार्य ने रक्त पित्त में आप देखते हैं वहां पर लिखा है विहरंती पुनर्वसु तपोबलम, वहां पर उन्होंने अलग अलग विशेषणों से व्याख्यान आचार्य ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ प्रमेह के बारे में भी तो इसी तरह से लिखा है कि निर्मोहम अनुसयो तपोबलज। एक मैं आपको निवेदन करूं इसमें कि यहां इसको आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, इससे चले साइड कैसे रुक गई? हम्म, हम्म, अब जाए, अब करो ना इसको। दूसरा मैंने आपको निवेदन किया कि आपने देखा होगा कि रागादि रोगान सत्ता अनुसक्तान अशेष काया प्रस्थान शेषान औत्सुक्या मोहदान अति जगानम यो अपूर्वेद्य है नमो अस्तु तस्मै। यानी कि वो जो चरक का आचार्य चरक संहिता में लिखा है कि निर्मोहम अनुसयो तपोबलम निराशा पुनर्वसुच काले अग्निवेशाय हेतु लिंगान अनुभव मेहान समयंती यथास्वम। उसी आधार को लेकर के भगवान बुद्ध के बारे में भी इसी तरह से लिखा है कि वह इसीलिए रागादि रोगान सत्ता अनुसक्ता ने लिखा है। तो इसीलिए मैंने ये मंगलाचरण में भी यही एक तरह से उल्लेख किया है, क्योंकि इस व्याधि के अंदर विशेष करके मोह, जो एक तरह से मोह शब्द आचार्य ने लिलिप्सा लिखा है, अत्यधिक इच्छा लिखा है। मोह को यदि आप स्पष्ट रूप से देखें तो रामायण में भी एक तरह से आपने देखा होगा कि मोह शब्द आया है वहां पर आचार्य कहते हैं सोचे ग्रही सो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। यानी कि वहां मोह को लिखा है उन्होंने कि ये अपने नियत कार्यों को एक तरह से विचलित होकर के, अपने नियत कार्यों को न करके, जो आचार रसायन है उनका पालन न करके और एक तरह से विपरीत कार्य करना। इस बात को आपने देखा होगा मद्भागवत गीता में भी आया है कि नियतम तु संन्यासम कर्मणो न उपपद्यते मोहात तस्यम परित्यागम तामसः परिपद्यते। भागवत में, ये गीता में लिखा है कि इसीलिए आचार्य का देखिए कितना, हम चरक को जब देखते हैं तो चरक ने सबसे पहले आचार्य अग्निवेश का सीधा ही उन्होंने लिखा कि किस व्याधि का कैसे उल्लेख करना है, वो एक तरह से यहां एक मोह शब्द से ही उल्लेख किया है। और ये व्याधि
मधुमेह एक या प्रमेह, विशेष करके मैं आपको निवेदन करूं कि आचार्य ने प्रमेह चिकित्सा व्याख्या में लिखा है, वहां मधुमेह नहीं लिखा, और मधुमेह लिखा है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां किया है। इसका यदि हम देखें तो ऋग्वेद के अंदर सबसे प्रमुख रूप से मिलता है कि मूत्रातिसारेतु विषाणिका, यानी कि सबसे पहले, क्योंकि ऋग्वेद में 2 सूत्र बहुत विशेष करके मिलते हैं, अग्नि मिले री पुंसामतु, यानी कि वहां गृहिणी रोग के बारे में बताया, और यहां लिखा उन्होंने मूत्रातिसारेतु विषाणिका, जो हम निरंतर एक तरह से आप जानते हैं कि एक तरह हम विषाणिका तू द्यो द्रव्यम ग्राह्यम, विषाणिका के 2 पर्याय मिलते हैं। पहला मिलता है मेष श्रृंगी, यानी कि एक जिम्निनिया सिल्वेस्ट्रीज, दूसरा मिलता है पिस्टेसिया इंटेजेरिमा, कर्कट श्रृंगी। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि वैदिक काल के अंदर भी इस व्याधि का मूत्रातिसार के रूप में एक तरह से उल्लेख किया है। वहां पर उन्होंने लिखा कि यह व्याधि के लिए विषाणिका का सबसे प्रयोग करते हैं, सबसे अच्छा एक तरह से प्रयोग करते हैं। और आधुनिक में भी कहीं एक तरह से आप देखिए, डाबर ने, वैद्यनाथ ने, सबने ही एक तरह से जिम्निया सिल्वेस्ट्रीज का एक ड्रग लेकर के, एक कंटेंट लेकर के उन्होंने कैप्सूल बना दिया। तो इस तरह से सब जगह इस तरह से पंचांग इसका प्रयोग करवाते हैं इसमें। दूसरा, मैंने आपको, अब ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, दूसरा हमने देखा है कि इस व्याधि में मुख्य रूप से अग्नाशय की सबसे ज्यादा विकृति होती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हम ये देखेंगे तो अग्नि सबसे प्रमुख होता है। मैं आगे जब इसको मॉडर्न और इसके दोनों आयुर्वेद को देख करके इसमें आपको बताऊंगा कि इस व्याधि के अंदर धात्व अग्नि की किस तरह से विकृति होती है, वो इस बताने का प्रयास करूंगा। वही मैं आपको बताया था कि निर्मोह अनुसयम निरासम पुनर्वज्ञम तपो बलो विशालम काले अग्निवेशा से हेतु लिंगान अमेहान समयति तेषाम च, यानी यहां मोह के लिए एक तरह से उल्लेख किया है। मगभात गीता में भी लिखा है कि मोह क्या चीज है। यदि हम इसके रेफरेंस देखें तो निश्चित रूप से चरक संहिता के अंदर प्रमेह का, हम ये कहें कि जो हमारा डायबिटीज है, क्या हम प्रमेह के मान लें? ऐसा नहीं है। आचार्य ने सभी विद्वान बैठे हैं, यहां मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूं कि मधुमेह शब्द को उन्होंने सूत्र स्थान में लिखा है, और सूत्र स्थान का मतलब होता है कि वह ऐसा सभी विषयों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करना। और वहां उन्होंने एक सटीक उदाहरण दे दिया कि हम डायबिटीज मेलाइटिस भी वो उसका एक पार्ट है। इस बात को आचार्य चरक ने सीधे सीधे रूप में कहा है। इस बात को यदि हम ग्रंथों में भी देखें तो वहां मैं बताऊंगा कि चरक सूत्र में लिखा गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्र समश्नताम, नीचे लिखा तैर आवृति गतिर वायु ओजो आदाय गच्छति यदा मूत्रो तदा कृच्छो मधुमेह तत्प्रवर्तते। यानी कि चरक को इस बात का पता था, आचार्य चरक में ये स्पष्ट था कि ये व्याधि, ये डायबिटीज, ये एक महामारी या बहुत बड़ी व्याधि के रूप में आएगी। तो इसलिए पहले ही उन्होंने कह दिया कि सूत्र स्थान में प्रमेह का न लिख करके मधुमेह शब्द लिखा है। और सूत्र स्थान का मतलब होता है कि हर चीज को सूत्र रूप में प्रस्तुत करना। तो यहां पर तैर आवृत्ति गतिर वायु, प्रमेह शब्द नहीं लिखा, उन्होंने ऐसा शब्द लिखा जो कि एक आगे तक बढ़ेगा, इंक्रीजिंग डिजीज होगी। तैर आवृत्ति गतिर वायु ओजो आदाय गच्छति। अब देखिए आप, ओजो शब्द लिखा है यहां पर। आप जानते हैं कफम से पित्तम पवनश्च दूषे मेदो आश्रब बसा लसिका मज्जा रसौदम पिच्चम से दूष्य प्रेमेणी विंसति रेम में, यानी 10 दूष्य बता दिए। लेकिन आप देखिए वर्णन की शैली आचार्य की कि वहां कफ सब ये नहीं लिखा, 2 ही दोष चुने हैं उसने, तैर आवृत्ति गतिर वायु ओजो आदाय गच्छति, यानी कि वायु दोष लिया है और दूष्य में ओज लिया है।
तो हम ये कितना एक तरह से सटीक वर्णन मिलता है कि मधुमेह जो हम डायबिटीज मेलाइटस समझते हैं, जिसकी इंक्रीजिंग एक तरह से बढ़ती जा रही है, और निश्चित रूप से हम कोरोना का आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे मेरा समझ है कि कोविड से इतने नहीं मर रहे हैं जितने कि उनकी जो पूर्ववत व्याधियां हैं उनका सम्यक चिकित्सा नहीं होने से। किसी को डायबिटीज है, जहां तक मेरा ज्ञान है, मॉडर्न को मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मान लीजिए यदि किसी को डायबिटीज है और आपने उसको मॉडर्न की कोई मेडिसिन, इस तरह की कोई भी हाई एंटीबायोटिक दे दिया, निश्चित रूप से उसका ब्लड शुगर बढ़ेगा। मेरा निवेदन यही है कि हम जानते हैं कि डायबिटीज का सबसे प्रमुख रूप से कारण अग्नि मांद्य है। इंसुलिन का तो कहीं उल्लेख किया नहीं आचार्य ने कि इंसुलिन क्या चीज है, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि इंसुलिन नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई न कोई हमने एक आधार रखा है जिसके कारण से हम चिकित्सा करते हैं। तो यहां पर ये निश्चित रूप से हम ये मानने चलते हैं कि ये डायबिटीज के अंदर ओज शब्द लिखा है। ओज के लिए भी एक बहुत बड़ा आधार है कि आप जानते हैं कि न साध्यम पवनम चतुष्कम, यानी कि समक्रियात विषम क्रियात महानित्याचे, यानी साध्य साध्य के बारे में बताया। यहां तक ओज जो शब्द लिखा है, ओज शब्द का मुख्य रूप से हमको दो आधार लेना चाहिए, एक पर ओज और एक अपर ओज। एक अष्टबिंदु प्रमाण, दूसरा अर्धांजलि प्रमाण। एक वह जिससे दुष्छाया दुर्मनम तत्भवे तत्क्षयम, ऐसा लिखा है। रक्त पीतम असित प्राणात नाशति नष्टम। तो मेरा ये निवेदन ये है कि जो आचार्य ने बताया है कि न साध्यम पवनम चतुष्कम, वहां पर हमको जो अष्ट बिंदु प्रमाण है, ओज है, उसकी दूसरी मानना चाहिए, उसका क्षय मानना चाहिए, उसका दुष्ट मानना चाहिए। और जो हमारा एक तरह से टाइप 2 है, जो टाइप 2 है, वहां पर मेरा मानना है कि वहां हमको अर्धांजलि प्रमाण लेना चाहिए। तो एक दो सूत्र में ही आचार्य सूत्र स्थान में सारी व्याख्या कर गए। यदि हम इसकी डेमोग्राफी देखें तो निश्चित रूप से यह देखा जाता है कि WHO ने साफ साफ लिख दिया है कि यह व्याधि निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है। यहां पर कि आचार्य कहते हैं कि ये 70 ईयर यदि एज है तो इसका बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी यदि संसर्ग, आज तो आपका कोविड है और आप जानते हैं कि ये कोविड-19 है, लेकिन डेनमार्क ने तो कह दिया कि कोविड-2 अभी हो गया, और जो मिंक से होता है, तो आप कहां तक करेंगे? हमको यदि हमारे सिद्धांतों को हम ये देखें तो हमारे सिद्धांत सटीक है। ये कहीं संसर्गज व्याधि उत्पन्न होंगी, लेकिन हमारे सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहां मैं आपको बात बताऊं कि राजस्थान में हमने एक प्रयोग करके मिला है कि विशेष करके कुछ हमने क्षेत्र चुने थे जिसमें जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, वहां पर एक तरह से उष्ट का पालन किया जाता है। तो वहां हमने ये देखा कि जिन क्षेत्रों में कैमिल मिल्क का प्रयोग किया जाता है, वहां इसका जो रेशियो है डायबिटीज का, वो बहुत कम मिला। तो हमको ये अपनी चिकित्सा में भी ये देखना चाहिए कि ये पथ्य सते गदा आतर से किम औषधम निषेवनम। तो हमको ये देखना चाहिए कि यदि हमने ये प्रयोग किया है तो वहां पर उष्ट कैमिल मिल्क का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हारित एक रेफरेंस मैं आपको बहुत अच्छा देता हूं कि वहां लिखा आचार्य ने कैमिल मिल्क के बारे में, गव्यम आहिसम कार्भम स्त्रेन मामिकम एवं एक सभ्यम चेती क्षीरम अष्ट विधम स्मृतम। वहां लिखा आचार्य ने, वहां उन्होंने लिखा कि उष्ट क्षीरम क्या है। हारित संहिता का एक बहुत बड़ा रेफरेंस मिलता है कि डायबिटीज में कैसे देते हैं। रूक्षो उष्णम तथा तीक्ष्णम लवणम कश्य कफस्य निवारणम वात विकार हारी लघु प्रशस्तम कटुकृमिणाम शोभय उष्ट्रोपम अनुकूलम।
कितनी सटीक बात बताई आचार्य ने कि यदि डायबिटीज 2 का पेशेंट है तो यदि हम कैमिल मिल्क का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से संहिताओं में जो लिखा है वो हमको लाभ मिला है और हमने करके भी देखा है। ये मैंने आपको एक तरह से, आप सब विद्वान हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एक तरह से आज से सुखम स्वप्न सुखम ददीनम ग्राम अनुपौदुक रसम पयांसी नवन्न पानम गुड व्यकृतम प्रमेय कभे जुकेसर, यानी कि आचार्य लिख गए कि इस तरह के यदि हम निदानों का सेवन करें तो ये एक तरह की स्थिति होती है। लेकिन मैंने मेरे उसमें देखा है कि अब आज से सुखम स्वप्न गुड व्यकृतम, ये जो बातें हैं ये बातों को ये इनसे अभी हम ये कहेंगे एक बार आप कंट्रोल कर लें। मैंने कहीं पेशेंट देखे मेरे उसमें कि उनको कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने दूध नहीं लिया लेकिन फिर भी उसका इंक्रीज होता, हाइजेंट्री को देखा। तो यहां पर हमका सबसे बड़ा ये देखना चाहिए कि वायु की प्रबलता है, वहां पर आपका अति चिंतन अध्यवसाय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीवेटिंग फैक्टर। तो हमको बात दोष के प्रकोपक कारणों के ऊपर भी विचार करना चाहिए, तभी ये एक तरह से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि इस तरह की दोनों ही एक तरह से मॉडर्न को भी इसको भी लिया है। हम ये कहते हैं कि मॉडर्न कहता है कि इंसुलिन निश्चित रूप से है, जो चीज है वो है, लेकिन यदि मेरा मानना है कि इंसुलिन आयुर्वेद में तो नहीं लिखा, आयुर्वेद में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन रोगी ठीक होते थे। चरक ने बता दिया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया, यहां तक कि आप ये देखिएगा सुश्रुत में प्रमेह रोग अध्याय लिखा, मधुमेह रोग अध्याय लिखा और प्रमेह पीड़िका अध्याय लिखा, ऐसे ही भागवत ने लिखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन, इसका मतलब है कि कोई न कोई तत्व है, आयुर्वेद का कोई सिद्धांत है कि हम इंसुलिन भी नहीं है, इंसुलिन की जगह वो हमारा काम करता है। और वो आपका एक तरह से, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वह आपका एक तरह से धात्व अग्नि है। आचार्य ने सीधा लिख दिया, पांच के अंशातु तेसाम साध दीप्तिभ्याम तद वृद्धि छवोद्भव, ये चाहे पांच का अंश, पांच का अग्नि के अंश धातु सु संसृता, जठराग्नि के अंश ही सभी एक तरह से धातु सु संसृता। आपने लिखा स्रोतस में लिखा, स्रोतासी खतु पर्णा माध्यम आपद्य माननम भवंती अयन अर्थेन, ऐसा लिखा वहां पर। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा इंसुलिन ये धात्व अग्नि है, हमारा इंसुलिन जठराग्नि है की मंदताई है। अद्यम आपने देख लिया कि अन्नम आदान कर्मातु प्राणम कोष्ठम प्रकर्षते तद द्रव्य भिन्न संगात स्नेहन मृतागतम परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भाव, यानी आपके तीन अवस्था पाक हैं, मधुर अवस्था पाक है, अम्ल अवस्था पाक है, कटु अवस्था पाक है, और दूसरा जठराग्नि यो अंतराम विपाक है, वहां आपका निष्ठा पाक है, अवस्था पाक। तो इनके उस चैनल को हम यदि पकड़ेंगे तो हमारा इंसुलिन का एक तरह से जो आधार है वो सफल हो जाएगा। ये मैंने आपको एक तरह से, आप जानते ही हैं ये सारे, ज्यादा मैं इसमें नहीं लगूंगा। एक बात मैं आपको निवेदन करूं कि केवल हम ये कहें कि हमारा एक तरह से, कि एक आचार्य सीधे सीधे कहते हैं कि प्रमेह की जो बताई है कि मेदस मांसम कर्मम कफो गते प्रदुष्यम करोति मेहान समुदीर्णम तानेव पित्तम परिदुष्य चापी कफम से पित्त। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, हम विद्वानों को चरक का निदान स्थान भी जरूर देखना चाहिए। और इस आधार पे मैंने ये देखा कि चूंकि ये जो व्याधि है ये व्याधि प्रबल है, और आप जानते हैं कि बात व्याधि प्रमेय से कुष्ठम अर्शो भगंधरम अस्मरी मूर्ण गर्भस्य 8 महागादि में इसका वर्णन किया है। तो हमको ये देखना चाहिए कि इसकी महामारता, इसकी जो स्प्रीडिंग है वो क्यों हो रही है। तो ये चरक निदान का एक तरह से हमको, यदि हमने इस संप्राप्ति को देखा,
चूंकि ये कफज प्रमेय की है, लेकिन हम यदि इसको देखें तो ये संप्राप्ति बिल्कुल सटीक होती है और हर बात का उत्तर देती है। त्रियाणाम एषाम निदान आदि विशेषाणम सन्निपातम श्लेषमम प्रकोपावान प्रागति भूयत्वात्। प्रागति भूयत्वात् से तात्पर्य है कि केवल आज हमने तीनों दोषों से युक्त आहार कर लिया और कल हमको व्याधि हो जाएगी, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि काल अर्थ कर्माणाम, यानी कि हमको ये देखा है चयो प्रकोप प्रशम सबका देखना है। चयो वृद्धि स्वधामन्य में प्रदेशो वृद्धि हेतु, यानी कि हमने ये देखा कि चय प्रश्मा वायु ग्रीष्मादिषु तिषु वर्षादिषु चय पित्तस्य श्लेषमणम शिश्रादिषु, यानी कि वो पूर्व से यदि किसी ने इस तरह का किया है और काल कर्म को प्राप्त करके वो बनता है। तो इसी तरह से मैंने इसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। इसमें दोष भी है, दूष्य भी है, सभी इस तरह से चैनल है, तो इसलिए हमको ये देखना चाहिए। इसी तरह से इसका सामान्यम लक्षणम तेषां, मैं आगे बढ़ रहा हूं, सामान्यम लक्षणम तेषां प्रभूत आविल मूत्रता, यानी कि इस प्रकार की भी ये इस तरह से बताया है। प्रमेय के पूर्व रूप में भी इस तरह का आप जानते हैं। मॉडर्न में यदि मैंने थोड़ा सा इसमें लिया है, मॉडर्न का आप ये जानते हैं, इसको ज्यादा मैं नहीं लगूंगा, आप सब इसके बारे में विशेष करके सारे सिम्टम आप जानते हैं। ये एक तरह से डायग्नोस्टिक पैरामीटर आप देख लें। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कोरोना जिसको है, कोविड है, तो निरंतर उसको एक तरह से जांच करना थी आवश्यक, बिना, क्योंकि ये जो बिना जांच बिना, और ग्लाइकोसिटिक हेमोग्लोबिन का भी बार बार एक तरह से चेक करना चाहिए। ये मैंने एक तरह से संप्राप्ति बताने की कोशिश की है, जो निदान की ही मैंने इसको टेबल के रूप में रखा है। अब जो मुख्य आधार है वो मैं चिकित्सा सिद्धांत के ऊपर जाता हूं। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इस व्याधि के अंदर प्रमेय चरक ने लिख दिया, यहां पर कि आचार्य ने साफ साफ लिखा है कि इस व्याधि में दो तरह से स्थिति है। एक आप ये देखा होगा कि अष्टांग संग्रह में विशेष करके एक मिलता है कि वहां लिखा क्षणात छीणे, यानी कि वहां पर लिखा कि क्रुद्ध धातु बया वायु क्षयात कोप मार्गस्य आवरणे, यानी कि वहां पर आचार्य सीधे सीधे रूप दिया कि यहां पर वो दो तरह का एक तरह से प्रमेय होगा। पहला ऐसा प्रमेय है जो सहज होगा, दूसरा ऐसा प्रमेय जो एक तरह से अनिमित्तज होगा, यानी जिसके द्वारा अपथ्य निमित्तज, जिसको आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि जो प्रमेयो भवति सहजो अपथ्य निमित्तज, ऐसा लिखा है वहां। तो यहां पर जो आचार्य चरक का जो आधार है, चरक का आधार है कि स्थूल प्रमेय बलवान ये के कृष्यम परिदुर्बलस्य संवृंगणम तत्र कृष्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको यदि स्थूल जो प्रमेयी है, स्थूल प्रमेयी से केवल हम ये कहेंगे ये यथोपचार, ऐसा नहीं होना। जब वो बेगो अपरोध है, वहां हमको एक तरह से इस संतर्पणीय अपतर्पणीय जो अध्याय है वहां का भी एक तरह से अवलोकन करके इस सूत्र को लगाना चाहिए, क्योंकि आचार्य इस बात को कह चुके हैं कि जो मैं आगे उसमें बताऊंगा। दूसरा इसमें यह बताया है कि वर्ण है रस स्पर्शमापी गंधम यथास्वम भजेत प्रमेयम श्या वर्णो बात कृतैश शूलम मज्जादि साध गुणम उपेत्ति असाध्यम। चरक इस बात को, आचार्य चरक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बात असाध्य होते न साध्यम पवनम चतुष्कम। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, मेरा मानना है कि हमको रोगी की दोष को आचार्य ने कह दिया, लेकिन वहां पर लिख दिया बसा में, मज्जा में, ओजो में, अलग अलग लिखा है। क्या सभी एक तरह से असाध्य थोड़ी होते हैं?
तो हमने ये देखा कि हमारा वर्णम रसम स्पर्शम, और ये एक इस विषय को सोचने का है कि हमने ये कहा कि 10 दूष्य हैं, लेकिन किस दूष्य के कारण से वातिक प्रमेय असाध्य होता है। तो वहां पर एक तरफ तो आचार्य ने कह दिया कि तैरावृति गतिर वायु ओजो आदाय गच्छति। दूसरा आचार्य यहां उल्लेख किया है कि कफम सपित्तम पवने शेष मेदो अस्र बसा लसिका मज्जा रसोचम। आपने देखा होगा कि जो ड्रिंक करते हैं और यदि उनको डायबिटीज हो जाती है तो उसको केयर करना बड़ा मुश्किल होता है। अव्यायामा दिवा स्वप्नात् मेद्या नाम से वर्धनात् मेदो वाहनी दुष्यंते वानुष्यति सेवनात्। आचार्य ने कहा है कि आप वारुणी का अति सेवन करेंगे, अति सेवनात् लिखा है, क्योंकि अष्टांग में पहले लिख दिया कि मध्यम ने सेव्यम, सेव्यम वा सुअल्प बहुबारी वा। अष्टांग कहता है इस बात को कि यदि हमको मध्य का एक तरफ ये अति वारुणी का सेवन करेंगे तभी मेदो में दृष्टि होंगे और उससे मेदो व स्रोतस इसमें इन्वॉल्व होता है। आपने देखा होगा कि घृतेलम मधु इस तरह के बताए। स्नेहन का लिखा मज्जा स्नेहम आपनुयात दीप्ताग्नि क्लेश साह घस्मरा मेदिन्यम सेवनम बातार्ते क्रूर कोष्टम स्नेह मज्जम आपनुयाय। तरक कहते हैं इस बात कि यदि हम मज्जा दूषित है तो वहां पर आपका रूक्ष द्रव्य काम नहीं करेंगे। यदि मज्जा की वहां पर क्षयता है तो वहां पर आपको मज्जा के रूप में ही कुछ देना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि केवल हम ये वातिक एक तरह से प्रमेय है, और यदि मज्जा क्षय के लक्षण मिलते हैं तो वहां पर हमको मज्जा के इस तरह की ही कोई व्यवस्था करनी पड़ती है। सर्वार्थकारी शिशु वृद्धि नाम नृत्यम व्याधि गदा पहुंचे, बस्ती में लिखा है। वहां पर यदि हम बस्ती देते हैं किसी को तो मैं आगे बताऊंगा इसमें। तो यहां पर बताया है कि यदि इस तरह का बात प्रमेय है वह असाध्य होता है, लेकिन मज्जा और पर ओज की स्थिति होनी चाहिए, तभी वह असाध्य माना जाता है। गुल्म छय मेह बस्ती सूलम, आचार्य ने लिख दिया। एक तरफ उन्होंने लिखा कि स्थूल प्रमेय बलवान ये के कृष्यम परिदुर्बलस्य संब्रंगणम तत्व कृष्य कार्य। यानी कि आचार्य इस बात को स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि यदि आप अपतर्पण का प्रयोग ज्यादा करेंगे, आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो वहां पर आपको क्या है कि गुल्म रोग हो जाएगा, क्षय होगा। तो उसको एक तरह से ठीक करने के लिए आपको संतर्पण चिकित्सा करना चाहिए। आप संशोधन ज्यादा देंगे तो इस तरह की हो। स्निग्ध योगा विविधम प्रयोज्यम संशोधनम न अर्थयम, यानी कि स्थूल प्रमेय व्यक्ति के लिए यहां पर एक तरह से जब गुल्म से एक श्लोक मिला है कि वहां पर लिखा कि गुल्म क्षयी रोगी के लिए, वहां लिखा उन्होंने कि स्निग्ध योगा विविधम प्रयोजम कल्पोपदिष्ट मल शोधनाय ऊर्ध्वम तथा अधस्य पीति मेसु संतर्पणम एव कार्य। यानी कि यदि इस तरह की स्थिति होती है अपतर्पण में, यदि संशोधन करने में गुल्म क्षय इस तरह की स्थिति होती है तो आचार्य कहते हैं कि वहां पर आपको संतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी स्थिति लिखी है। 3 यहां पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है स्निग्ध स्थूल प्रमेय बलवान के कृष्यम परिदुर्बल संब्रंगणम तत्र कृष्य कार्य संशोधन दोष बलाधिकश्यम। दूसरा लिख दिया कि यदि गुल्म क्षय मेह बस्ती इस तरह की स्थिति होती है। तीसरा लिखा उसना कि संशोधनम ने आहर्ति, संशोधन जिसको योग्य नहीं है वहां पर आचार्य कहते हैं कि वहां पर संतर्पण करना चाहिए। और एक तरफ लिख दिया उन्होंने मेहसु संतर्पण एवं कार्य,
तो यहां पर मेरा मानना है कि मेहेसु संतर्पणम एव कार्यम, मेह में संतर्पण करना चाहिए। लेकिन चक्रपाणि ने स्पष्ट टीका की है इसकी कि संतर्पण किम है, संतर्पण का क्या अर्थ यहां लेना चाहिए। वहां संतर्पणीय अध्याय में लिखा आचार्य ने कि दीप्तिकार के ही संतर्पण शब्द प्रयोग है, यथा व्योसादि सत्व है। यानी कि मेहसु संतर्पणम जो लिखा है वहां पर केवल गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्र समर्शनतम यह अर्थ नहीं है। यहां पर आचार्य कहते हैं कि तृप्तिकार के ही संतर्पण शब्द प्रयोग है। चरक त्रिमर्मी अध्याय में लिखा है कि वहां पर व्योसादि शक्तु का प्रयोग करवाना चाहिए। तो मेहसु संतर्पण का ये आधार इसको मानना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा था कि हम ये मानते हैं कि इस तरह की ओरल औषधि बहुत है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसके ऊपर एक संस्थान लेवल पर ही हमने इस पर काम किया कि हम सब कुछ देते हैं, ओरल मेडिसिन बहुत है, लेकिन क्या बस आचार्य कहते हैं कि सर्वार्थकारी शिशु वृद्धि विना नृत्यम व्याधि गदवम से, इस तरह का आचार्य लिख गए कि बस्ती तो समस्त चिकित्साओं में मूल है, तो क्या बस्ती का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि संशोधन करना चाहिए, और आपने देखा होगा कि सुश्रुत तो कहते हैं कि सहजो दो प्रमेयो दो एवं सहजो अपथ्य निमित्त जम, और वहां लिख दिया प्रियंगादि गणेदि शोधनम अंतरम तद विरेचनम अनुतम, ऐसा लिखा आचार्य। यानी कि वहां ऐसा संशोधन लिखा तो हमने एक एडॉप्ट किया कि हमको इस तरह का देखना चाहिए। जितना भी है वो सब मैंने एक तरह से टाइप 2 के बारे में आपको बता रहा हूं, जो अपथ्य निमित्तज है। जो मैं टाइप 1 जातोत्तर वाले प्रमेय के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको इसकी कल्पना करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि बस्ती के लिए इसमें प्रयोग किया। हमने चरक को ही लिया सबसे प्रमुख रूप से, क्योंकि चरक चिकित्सा जो अध्याय है, चरक जो अध्याय है वो प्रमेय चिकित्सा व्याख्या में लिखा है। और आपको आचार्य सभी विद्वान बैठे हैं, ये साफ साफ बता देता हूं कि चरक का मानना मधुमेह ही नहीं है, उनका हॉल है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो आपने देखा होगा कि चक्रदत्त जब उठाते हैं या चरक का पहला लाइन देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा, दारवी सुराभ्यम त्रिफलास है मुस्तम कसाय मुत्क्वात पीबेत प्रमेयी चौद्रेण अथवा पीबेत रसेन आमल की रसेन। यानी कि उनका मानना केवल डायबिटीज ही नहीं था। यदि ऐसा होता तो वहां पर छोद्रेण क्यों लिखते, वहां पर चक्रदत्त सबसे पहले योग जो लिखा है वहां लिखा कुशावलेवम से, कुशावलेह लिखा है पहले प्रमेय चिकित्सा आरंभ करते ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रमेय तो एक बहुत बड़ी व्याधि है, मधुमेह तो उसमें एक छोटा सा आधार है आचार्य चरक के अनुसार। तो मैंने चरक के संहिता में से ही देखा कि हमको बस्ती में क्या प्रयोग करना चाहिए। आप देखिए सिद्धि स्थान में लिखा कि प्रमेहेसु सोम बल्कज कसाया, चरक सिद्धि स्थान बताया। वहां उन्होंने बताया कि बिट खदीर को यदि हम कसाय के बस्ती में दें तो बस्ती अध्याय त्रिसूत्रीय सिद्धि स्थान, वहां लिखा कि बिट खदीर की बस्ती दें तो रोगी को लाभ मिलता है। क्योंकि एक द्रव्य है और चूंकि ये महागद है, महाअष्ट महा उसमें आती है, तो हमने ये सोचा कि कुछ और द्रव्यों का प्रयोग करें, क्योंकि केवल बिट खदीर से हम रोगी को करें ये ठीक नहीं है। फिर मैं इसमें देखा तो हमने पंच प्राशस्तिक अध्याय, प्राशस्त्य योगिकी अध्याय चरक सिद्धि स्थान अध्याय 8, वहां पर बस्तियों का हमने उल्लेख किया। वहां पर हमको दो एक तरह से रेफरेंस मिले जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर हमने एक तरह से विशेष करके सबसे पहले मैंने आपको बताऊं कि हमने पांच एक तरह प्राशस्तिक योगी अध्याय देखा, और प्राशस्तिक योगी अध्याय में और निश्चित रूप से मैंने इसको प्रैक्टिकल के देखा है और अब भी मैं देता हूं। तो यहां पर हमने ये देखा कि वहां पर एक पंच तिक्त पांच प्राशस्तिक योग अध्याय, पंच प्राशस्तिक बस्ती का उल्लेख किया है।
इस बस्ती का और बस्ती सूत्री अध्याय में अंतर है। आचार्य चरक कहते हैं कि ये प्राशस्त्य की योगी अध्याय है, ये इसमें कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। कंट्राइंडिकेशन क्या कि लिखा अभुक्ते रिक्त कोष्टम प्रयुक्तम अनुवासनम सदूर है सूक्ष्मत्वम ऊर्ध्वम एवं प्रवर्त्यते, यानी अनुवासन बस्ती दोगे तो यदि इस अभुक्ते रिक्त कोष्टम देंगे तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, इसको भोजन के पश्चात देना चाहिए। इसी प्रकार से निरु के बारे में लिखा। तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि इस अध्याय में आचार्य ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी भी उम्र के लोगों को हम दे सकते हैं, इसीलिए इसका हमने उल्लेख किया। यहां उन्होंने एक तरह से बताया कि पंच प्राशस्त्य की जो बस्ती है, पंच तिक्त पांच प्राशस्तिक बस्ती, उसका फलश्रुति में, क्योंकि हमने इसको चयन का एक आधार लिया है कि हमको फलश्रुति इसकी मिली है। क्या लिखा उसने कि पटोल है निम्बे भूनिम्बे रासना छपसा दंड से, पटोल है निम्ब भूनिम्बे है रासना सप्त छद अंब से, पंचतिक तो यह बस्ती वहां लिखा आचार्य, यानी कि 5 चीजों का उसमें लिया, पटोल लिया है, निम्ब लिया है, भूनिम्ब लिया है, रासना और सप्तपर्ण, और वहां लिखा आचार्य ने कि सरसप कल्क। तो हमने इस तरह से और घृत, इस तरह से आचार्य ने बताया कि पंचतिक तो ये बस्ती मेहा अविशंदी कुष्ठनुत, ऐसा लिखा फलश्रुति में कि पटोल निम्ब भूनिम्बे रासना सप्त छंद से पंचतिक तो ये बस्ती में अवसंधि कुष्ठनुत है। इनके लिए हमने इसको तैयार किया और तैयार करके हमने ये क्रम मात्रा में एक बस्ती की ये मात्रा है, ये मैंने इसके बारे में ये अलग अलग है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से हमने ये बस्ती करीब हमने 400 ml के करीब रोगी को एक तरह से, जिस तरह से आप निरू बस्ती का प्रयोग करते हैं, इस मात्रा में इसको हमने प्रयोग कराया। दूसरा हमने इसमें ये देखा कि इस व्याधि के अंदर विशेष करके धातु का क्षय होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस में धात्वाग्नि की मंदता होती है। इसलिए हमने ऐसा एक मैनेजमेंट किया कि वायु धातु क्षयात को पे मार्गस्य आवरणेन से उसको भी दूर करे, धातु क्षय को भी दूर करे। इसलिए हमने इसमें एक भेषज रत्नावली का योग हमने लिया, मृतम सूतम मृतम लोहम बंगम अभ्रकम एवच, यानी कि रस सिंदूर लिया, लोह भस्म लिया, अभ्रक लिया और बंग लिया। इस तरह से हमने एक तरह से गोक्षुर क्वाल इस तरह का इसका प्रयोग करवाया। इसमें हमने कैप्सूल के रूप में रोगी को दिए। तो धातु क्षय के लिए इस तरह का योग इसमें तैयार करके दिया। दूसरा हमने इसमें देखा जो मैंने बताया आपको कि अग्नि मांद्यकी सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि इस व्याधि के अंदर यदि हमने चिकित्सा में यदि अग्नि का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ मिलता है। मैंने यहाँ एक तरह भेषज रत्नावली का लिया था, त्रिकुटम त्रिफलातुल्यम गुग्गुलम समाचकम गोक्षुर क्वाथ संयुक्तम बटिकाम कार्येत वृदम, यानी कि कोई ज्यादा इसमें एक तरह से कोई बहुत बड़ा कॉस्टली आइटम है ही नहीं। 5 त्रिकटु है, त्रिफला है, गुग्गुलू है, इस तरह के, और गोक्षुर की मात्रा दे करके इस तरह से बना करके रोगी को दिया। इस तरह से हमने इसका प्रयोग किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको इस पूरे उसको यदि हम देखें तो मेरा निवेदन यही है कि हमको हम कोरोना का या कोविड के जो पेशेंट हैं उन कोविड के पेशेंटों का हमारा जो चिकित्सा सूत्र है उस चिकित्सा सूत्र के साथ साथ ही उसमें जो व्याधियां हैं जो उसको उपलब्ध, यदि उसमें डायबिटीज है या अन्य कोई व्याधि है उसका भी हमको देख करके चिकित्सा करनी चाहिए, तो रोगी को बहुत अच्छा एक तरह से लाभ मिलेगा। जहां तक मैंने देखा है मेरे इसमें, अभी हमने कोविड का, जैसे माननीय
मिनिस्टर साहब ने भी कहा, तो हमने भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको भी आदेश मिले थे, हमने भी एक तरह से जितने भी कोविड वॉरियर थे एज ए डीएमएस, मैं डायरेक्टर साहब की परमिशन से करीब हमने 12,000 किट उसमें सभी को एक तरह से पुलिस के जितने भी थे उन सबको वितरित किए थे और अच्छा लाभ मिला है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि यदि किसी को जो इस तरह की व्याधि है या प्रमेह है या अन्य कोई व्याधि है, उस ब्लड प्रेशर है या अन्य इस तरह की है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि हम उसका साथ साथ चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी को लाभ मिलेगा। एक मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे यहाँ पर कि एक मधुमेह आदि एक चूर्ण होता है, चूर्ण चलता है, अखिलेश जी जानते हैं, इसकी हमने एक डायबिटीज के लिए अलग से एक तरह से यूनिट रन कर रही है और ये हम एक तरह से ओपीडी में देते हैं। इस तरह की एकल द्रव्यों का भी प्रयोग किया है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार से आचार्यों ने चक्रदत्त में सीधा लिखा है प्रमेह चिकित्सा में, वहां कुछ अवलेख का भी उल्लेख किया है। शिलाजित का प्रयोग आप जानते ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो बंद कर दिया क्या? Thank you very much, sir. Thank you for your very nice presentation, and it is very much informative for the fraternity of Ayurveda. Thank you very much. Now it is the time for open session for discussion and question answer. So to conduct question answer section, I request Dr. Neeraj Kanungo from the Department of Kai Chikitsa to continue the question answer section. Dr. Neeraj Kanungo. Sir, good afternoon, good evening, sir. Sir, my question to Dr. Suresh Das, sir. These are the questions from participants and students. What are the Ras These are very much useful during the COVID-19 treatment. Hello, may I audible, sir? Yeah, you are audible. Dr. Suresh Das, sir, please unmute your, please unmute, sir. इसको Dr. Suresh Das, sir. मेरा बंद कर। Dr. Das, sir, please unmute your. Okay, now I am audible. Yeah, Yes, sir. Regarding the Rasaushadhis, as I have told, always you see the patient according to the patient's feelings or according to the patient's sign and symptoms. Suppose you are giving Mrityunjay Rasa, suppose you are giving Pratap Lankeshwar Rasa, depending upon the patient's condition, you have to prescribe. If you are seeing the temperature is high, you can give Pratap Lankeshwar Rasa. Suppose you are seeing this is the patient is having more kapha or there is more respiration problem, you can give him Mrityunjay Rasa, you can give Kaphaketu Rasa. Several drugs are there. Depending upon the patient's condition, you can choose any tablet, any kashaya, or according to the books, you can give. Okay. What are the useful rasayans after the post-COVID patient in Yes, pandemic exactly. I have COVID? forgotten that. I am to tell. Mostly people, those who are cured by the COVID, later on they tell that there is severe physical debility. They are unable to walk few steps. Either they are unable to due to improper intake of oxygens or improper function of the lungs. In that case, we can ask the patient to practice pranayam or to practice lungs exercises. If there is debility due to having immunity problems, we can give ashwagandha, we can give that what I am telling that bhalatak, we can give chavanprash also.
By that way, even we can give the Kushmando, Basa bole ho, Kushmanda bole ho. These are the good things which will generate body immunity so that the person can take it. And as Dr. Joshi has already given the information regarding Agni, we have to give importance regarding Agni. If there is Mandagni, we have to give drugs where the Agni will be increased. Further drugs are given which will be lateral utilized by the body. Okay, sir. Thank you. Thank you, Okay, sir. thank you. सर के लिए आर के जोशी सर के लिए क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर ये जब हम संप्राप्ति की बात करते हैं प्रमेय की संप्राप्ति में, तो जी। प्रमेय की संप्राप्ति में अजीर्ण और एक अतिसार का भी उल्लेख आता है कि कहीं न कहीं से उसकी संप्राप्ति से भी प्रमेय की संप्राप्ति जनित होती है या निर्मित होती है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, ऐसा है कि आचार्य ने विशेष करके आपने देखा होगा कि संसम्य अपाम धातु अग्निवृद्यम सकृत मिश्रो वायुना अधय प्रणम सरति अतिसार घोर व्याधि षड्विधम एवं प्रवदंती सत्य। यानी कि अतिसार की जहां संप्राप्ति बताई आचार्य ने, एक बात। दूसरा, आप इसी के साथ में देखिए कि अतिसारे निवृत्ति अपि मंदाग्नि रहित अश्नस्य हुयो संदुष्यतो वनि गृणिम अवदुष्यते। यानी साफ साफ लिख दिया आचार्य ने कि ये दोनों ही अग्नि मूलक हैं। बिना अग्नि की दुष्टि के बिना गृहिणी भी नहीं होती। अब आपने एक बात बताया तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आचार्य ने गृहिणी रोग अध्याय नहीं लिखा, चरक ने गृहिणी दोष लिखा है। और चक्रपाणी में क्या लिखा वहां पर कि गृहिणी आश्रितो अग्नि चे एवं आश्रय आश्रण्यो भावा वेदोपचारात गृहिणी दोषान अग्निर इति उच्यते। चक्रपाणी ने गृहिणी दोष को लिखने से पहले ही चक्रपाणी टीका कर चुके कि यहां जो गृहिणी रोग नहीं लिख रहे, वो सुश्रुत ने लिखा है। सुश्रुत ने कह दिया कि अग्नि की दुष्टि के कारण से हुआ, लेकिन अग्नि को चरक गृहिणी को केवल ड्यूडेनम नहीं मानते, वो पूरे अग्नि को मानते हैं। तो यहां प्रमेय भी आपको ये देखिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि प्रमेय जो है वो अग्नि मूलक है। प्रमेय की जो मैंने आपको बताया कि जो मैं त्रयाणाम दोषाणाम विशेषाणाम निदानाम सन्निपातम प्रागति भूयस्वात् तम विसृति लभेतम, यानी कि जो एक चैनल है, उस चैनल को यदि हम अच्छी तरह से पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से अग्नि की जो विकृति है वहां पर आचार्य कहते हैं कि एक बार आप चाहें तो मैं उस निदान को आपको स्पष्ट कर दूं जो संप्राप्ति है। यानी कि मेरा निवेदन है कि आप चरक के निदान जो प्रमेय की संप्राप्ति बताया है उसको पढ़िएगा, और उसने कितनी स्थिति से लिखा है। चाहे तो देखिए आप में वहां लिखा त्रियाणाम से विसृतिम लभेतम दोष दूष्यत्वात्, मतलब कितने चैनल करके उन्होंने वर्णन किया है। तब लिखा मूत्रम परिणमयन्ति, मूत्रम परिणमयन्ति, मूत्रत्वम मतलब आप ये कहें कि वहां पर जल आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पर मेद जल उदक सभी एक तरह से दूष्य हो करके मूत्रत्व में परिणित होते हैं। उसमें भी यही है, आपने अतिसार में देखा कि संसम्य अपाम धातुन अग्नि वृद्ध्यम। संसम्य का मतलब धातु यानी कि जठराग्नि की मंदता से आम बना, और आम बन करके वह एक तरह से कफ के साथ मिलकर के और अप धातु की वृद्धि की, और अप धातु की वृद्धि करके वह सरती अतिसार घोद व्याधि। तो इस तरह की स्थिति है। तो हमको ये देखना चाहिए कि जब अतिसार देखिए, आपने देखा कि सुश्रुत इसमें बड़ा सटीक है। उन्होंने क्या कर दिया कि क्लियर कट पैरामीटर, वो कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष को मानता हूं, मैं प्रत्यक्ष को नहीं मानता। तो उन्होंने क्या लिखा कि यशोच्चारम बिना मूत्रम सम्यक वायुष्य गच्छति दीप्ताग्ने लघु कोष्ठ से स्थित तस्य उद्राम है। यानी कि अतिसार को हमने डिसेंट्रोल दे दिया,
या बिल्व चूर्ण दे दिया और मल की प्रवृत्ति रुक गई, तो क्या आप उसको सही मानेंगे? सुश्रुत नहीं कहते। सुश्रुत कहते हैं कि जो संसम्य अपाम धातु अग्नि वृद्ध्यम सरति अतिसार जो चैनल हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। वो कैसे होगा कि यशोच्चारम बिना मूत्रम सम्यक वायुष्य गच्छति, और नीचे लिख दिया दीप्ता अग्नि लघु कोष्ठस्य। यदि ये स्थिति है तो ठीक होगा। तो इसी तरह से हमने प्रमेय में भी देखा है कि प्रमेय में भी विशेष करके अग्नि की दृष्टि होती है। यदि वहां भी आप देते हो कि वहां मैंने बताया ना आपको त्रिकुट तुल्यम गुगुलु मांसकम, यानी त्रिकट गुटिका दी है भाव प्रकाश ने। क्यों दी है? क्योंकि अग्नि की वृद्धि करने के लिए, अग्नि की एक तरह से दुष्टि जो है कफ के कारण हुई है उसको ठीक करने के लिए। तो हमको ये मानना चाहिए कि दोनों का ही आधार है। सर एक आखिरी क्वेश्चन और है इसमें, जो जी कोविड के दौरान जो मधुमेह पेशेंट हैं उनको मैनेजमेंट के लिए क्या ज्यादा उपयुक्त रहेगा? जैसे बस्ती वगैरह चिकित्सा तो अभी सर निषेध है कि हम दे नहीं पा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं आपको कि विशेष करके बस्ती की चिकित्सा मैं नहीं बताता। बस्ती एक सामान्य चिकित्सा है। हमको मैंने आचार्य कहते हैं कि दोष दूष काल अवस्था सबको देख करके चिकित्सा का उपक्रम एडॉप्ट करना चाहिए। आचार्य ये नहीं कहते कि हमको ये नहीं, उन्होंने साफ साफ लिख दिया। तो वहां पर हमको ये देखना चाहिए कि जिन व्यक्ति को है वहां पर रस औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस व्याधि के अंदर विशेष करके जहां तक मुझे लगता है कि प्राणवय स्रोतस की भी स्थिति होती है। तो प्राणवय स्रोतस के से जहां स्थिति है वहां पर आपका निश्चित, क्योंकि आप जानते हैं तम केतु विरेचन कफ वातात्मक पित्त स्थान समुद्भव, यानी कि वहां पर आपने तमक श्वास के भी देखेंगे तो वहां पर भी विरेचन का उल्लेख किया है। वहां पर भी अग्नि को एक तरह से बढ़ाने के लिए है। तो वहां पर आपको कोई भी इस तरह की औषधि देना चाहिए जो चाहे आप एक ही औषधि दें, लेकिन पंचकोल है, इस तरह अग्नि दीपक औषधि अति आवश्यक देना चाहिए। उससे आपका दोनों ही ठीक होंगे। आपका कोविड में भी उसके लक्षणों में भी फायदा होगा और आपका हरिद्रा भी उपयोगी होगी। हरिद्रा बिल्कुल बिल्कुल दे का सकते उल्लेख बिल्कुल आचार्यों सर, ने भी किया है। बिल्कुल सर दे सकते हैं। कोविड में भी हुआ है। बिल्कुल दे सकते हैं सर, लिखा है ना। पहले आप जानते हैं सर कि चरक पहले ही जो चिकित्सा लिखा दार भी हरिद्रा त्रिफला से मुस्तम कसाय मुत्क्वात्य पीवेत प्रमेयी, साफ साफ लिख दिया। पहला ही श्लोक लिखा है चरक चिकित्सा सिद्धांत अध्याय 6 का। वहां और कोई पहले ही यही उल्लेख किया, चिकित्सा सूत्र लिख करके तत्काल इसी योग को वर्णन किया। तो दे सकते हैं सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर मैं कुछ नीरज जी एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है जो चैट बॉक्स में है। अधिकारी जी डॉक्टर दास अधिकारी पूछते हैं कि ये क्वेश्चन डॉक्टर आरके जोशी सर के लिए है कि जो कोविड-19 में डायबिटीज पेशेंट और हाइपरटेंशन पेशेंट, डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट ज्यादा क्यों है? देखिए ऐसा है कि विशेष करके कोविड में मैंने पहले भी निवेदन किया था, क्योंकि जैसे ही कोविड पॉजिटिव हुआ बात की वृद्धि होगी। आयुर्वेद की संहिता के अनुसार बात की वृद्धि क्यों हुई? उसको टेंशन में हो गया वो उसकी। और आप ये जानते हैं सर कि जब इस कोई भी अति चिंतन होगा तो बात की वृद्धि होगी। अग्नि सम्यक होने पर भी पालन नहीं करती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो निवेदन किया है कि कोविड वाला अपन के पास तो हमको तो कोई वो है ही नहीं परमिशन कि हम चिकित्सा कर सके आयुर्वेद की। यदि जहां तक मुझे लगता है हमें वो है, लेकिन जहां तक ये मेरा सोच है कि हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जो स्थिति है वहां मेरा ये है कि औषधियों का व्यतिक्रम है। यदि उसने औषधि कंटिन्यू ली, जहां तक मुझे लगता है कि हाई एंटीबायोटिक वो देते हैं, जितना भी वो जो उनका एक सेट ट्रीटमेंट है कोविड का, वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। आपकी तरह से दोष और दूष्य और अग्नि को देख करके नहीं करते सर।
तो इसीलिए मुझे जहां तक लगता है कि उसकी जो औषधियों के कारण से उसकी एक तरह से या तो कंटिन्यू टेकन नहीं करता है, या फिर अग्नि को वो देखते ही नहीं। वो तो कहते हैं दही भी खाओ, वो तो कहते हैं ये भी लो, लेकिन आप तो जानते हैं कि आयुर्वेद तो एक तरह से, आयुर्वेद के आप तो मॉडर्न भी मानता है कि पथ्य भी कोई चीज होती है। पथ्य भी एक तरह से इसका यदि सम्यक पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी औषधि भी काम करेगी। और इसका बढ़ने का कारण मुझे तो यही लगता है कि शायद है कि वो एक साथ देते रहते हैं, हाई Excuse एंटीबायोटिक me. देते हैं, ये भी दे रहे हैं, और जो मूल जो व्याधि है उसकी तरफ वो कम ध्यान देते हैं। क्योंकि एक बार Excuse- कोविड वार्ड में भर्ती हो गया पेशेंट तो उनका शायद ट्रीटमेंट चल जाता है, फिर वो नहीं देखते कुछ भी, जब तक निगेटिव नहीं होता है तब तक। Excuse me, just I am to add something. I have already told you the जी। stress factor is the major one. The stress, as the patient is becoming isolated, the persons, the family members are not able to talk to him. ये Even सर, ये that is the most important point. जी And सर, जी। in foreign countries, they are now making the barriers through polythene so that the patient can interact. Because once the patient goes to the hospital, he has no scope to interact with the family members. The stress is the major one. By the stress, the bath bruddhi is more. And जी it सर, जी leads सर, to death. जी सर, That's जी why सर, जी सर, there is Yes. more death in diabetes and hypertension. जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, Thank you. Thank you. Yes. जी Thank जी Thank सर। you. जी सर, थैंक यू सो मच सर। Thank आप you, जैसे thank you. विद्वानों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, और आयुर्वेद का इतना डीप और नॉलेजेबल ज्ञान सुनकर बहुत ही हम लोग कृतज्ञ हुए। थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank Bye. So thanks to both our एक speakers मिनट for एक their मिनट very नायक जी, एक मिनट में बोलना चाहता हूँ नायक जी। okay. और डॉक्टर सुरेश चंद्र दास जी मेरे गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। Thank you. Thank you. और प्रोफेसर आर के जोशी जी, वो भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सर। और एक बार मेरे अनुरोध पर आप सहमति दे दिए हैं और आज का जो वेबिनार इनको सफल कराए हैं। अब जोशी जी यस्टरडे मुझे बोल रहे थे कि बहुत बिजी थे, सर प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, उनका डाउट जी। था वेबिनार में ज्वाइन करना। स्टिल देन वो आके हमारे साथ 2 घंटा से ऊपर यहाँ उपस्थित रहे और वेबिनार को सफल कराए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thank you. और एक Thank you, माफी भी मांगता हूँ जोशी जी सर, कि सर, सर, भूल गलती से अवसर नहीं, प्राप्त हो गया था, क्योंकि कोई बात ऐसे चीज जो है वो हम समझ नहीं पाए थे, वो सर, गलती सर, से सर, मिस्टेक सर, सर, हमारा सर, हो सर, गया था, इसलिए सर, माफी मांगते हैं। ऐसा जी सर। दोबारा नहीं होगा। नहीं, 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 नहीं आप सर, लोगों को फिर मैं सर, प्रणाम सर, करता हूँ। सर, ओके, थैंक यू। सर, Thank you. ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर एपीएस चौहान सर से निवेदन करता हूं कि अंत में वो आभार प्रदर्शन व्यक्त करें। डॉक्टर एपीएस चौहान सर। 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा जो वेबिनार आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पेंडेमिक, इस थीम के साथ में जो हमने ये आज आयोजित किया, और इस वेबिनार में आज के हमारे कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर रामकिशोर कांवरे जी, सम्मानीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग, उनका हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। उनके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके इस वेबिनार में वे उपस्थित हुए, और न सिर्फ वे उपस्थित हुए बल्कि उन्होंने अपने ओजस्वी शब्दों से, अपने मार्गदर्शक शब्दों से, अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया। मैं उनका पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से और आयुष विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव माननीय श्री प्रतीक हजेला जी का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त यहाँ करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में ये मध्य प्रदेश शासन के आयुष विभाग के समस्त संगठन
बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आज भी वे हमारे बीच में उपस्थित हुए, हमें लगातार वे प्रेरणा देते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर हमको जो गिफ्ट देना है, अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो वे हम क्यों ना हम आयुर्वेद औषधियों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों तक जाएँ, समाज में जाएँ और आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ। उनके इन प्रेरणादायी शब्दों से निश्चित रूप से पूरा आयुष विभाग प्रोत्साहित होगा और आगे भी आप भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के उप संचालक माननीय डॉक्टर पीसी शर्मा जी का भी यहाँ पर विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भी लगातार हमें इन वेबिनार्स के आयोजन करने में हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमें सहयोग दिया है। तो मैं उनका भी पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस वेबिनार में जो थीम थी हमारी कि आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पैंडेमिक, इस विषय पर हमारे 2 विद्वान माननीय डॉक्टर सुरेश चंद्र दास जी, जो कि अनन्या आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के प्राचार्य हैं और वे हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने जो अनुभवों से, अपना जो जीवन भर के जो आयुर्वेद के ऊपर चिकित्सा का जो उनका ज्ञान और अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। निश्चित रूप से जो पार्टिसिपेंट, जो चिकित्सक, जो विद्यार्थी, जो स्कॉलर, जो रिसर्च जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको निश्चित रूप से उनके शब्दों से, उनके मार्गदर्शन से लाभ हुआ है। तो मैं इस अवसर पर उनका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर आर के जोशी जी, विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, वे भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज एक विशेष दिवस है और एनआईए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। आज के इस इतने व्यस्ततम कार्यक्रम के दौरान भी वे हमारे बीच में रहे और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय शेयर किया और साथ ही डायबिटीज का किस तरह से कोविड 19 पैंडेमिक में जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है, किया जाना चाहिए और पोस्ट कोविड भी किस तरह से हमें आयुर्वेद चिकित्सा का उपयोग करना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों से, बहुत ही सारगर्भित अपना प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखा। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर हमारे प्रदेश के समस्त आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य जो हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर महेश शर्मा जी और सारे प्राचार्यों का भी मैं विशेष रूप से यहाँ आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना समय दिया और हमारे इस संस्था के वेबिनार में जुड़े। साथ ही मैं प्रदेश और प्रदेश के बाहर के समस्त आयुर्वेद शिक्षकों का, आयुर्वेद चिकित्सकों का, आयुर्वेद विद्यार्थियों का और ऐसे समस्त महानुभावों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी उपस्थिति से आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक हो गया। ये वो कर दीजिए, मेरा म्यूट कर दो, स्टॉप वीडियो।